manual, which is book 1. It is having three buttons over here: minimize, maximize, close. After that, here is the tab where you can see different tabs: home tab, insert tab, page layout tab, formula tab, data tab, review tab, view tab, and add-ins. This extra tab can be inserted in it. Different tabs have different functionality associated with it. Then comes your function bar, where whatever function you are performing on a particular cell, it is being shown over here. Cell is what? It is an intersection of rows and columns. Here you can see the rows, over here you can see the column, and then comes the groups on the tab. Different groups from where you can do the font editing, styling can be done of your document. Then comes your scroll bars. This is your horizontal scroll bar, this one, and this is your vertical scroll bar. Then comes your worksheets. Here is sheet number 1, 2, 3. Then status bar tells about the information about the active worksheet on which you are working. It includes your page number, zoom slider, view shortcuts. Formula bar, it is located below the ribbon. It is used to enter, edit the worksheet data. And then comes name box. Name box tell you the reference and columns or row location of your active cell. Then comes the function. Functions are predefined formulas that perform calculation by using specific values called argument. How many functions? Now we will be discussing about few of the functions. First is sum function, then is average function, then is count function, max function, min function, and from this we will be doing one problem. You will calculate the mark sheet of students. So for this I will be showing you practically how we can do this. For example, you have to calculate the mark sheet of the 15 student. From here I am taking the data from one of my Excel. Now from here you can just paste your data, and then in the earlier data I have done some of the formatting. So what I will do, I'll just clear the rules over here. You can see now here I am creating the mark sheet of 15 students of different subject. First I will be applying the total, how much total the person is or the student is getting. The first student name is Raman, and how much total he is securing in all the 5 subjects. First subject is food production, second is front office, third is management, third is food beverage, and fifth one is computers. So for this we will be applying one function, sums equals to sum. Select the columns from where you are just calculating. See over here food production marks are present in E3, column number E, and row number 3. So on. Next marks of Ramans are in F3, G3, management marks are in G3, and food and beverage marks are in H3, and computers marks are in I3 column. So from here equals to sum function, bracket E3 colon I3. Now I am putting over bracket over here, and then I am pressing enter. From here I am getting the marks, total marks of the Raman student in all the 5 subjects. So this is how you can get the total marks. Now calculating about the average marks of the student, here is the formula, equals to average bracket, then you have to select average marks of the students in all, मतलब आपको सारे marks को calculate करना है, that is starting from E3 till I3. Just put the bracket, then press enter. This is how you are getting the average marks. But when we are talking in mathematical terms, there is another formula where you can calculate the average marks. Average marks आप कैसे calculate करते हैं? Total marks divide by जितने आपके subjects हैं, 1, 2, 3, 4, 5. So we are having the 5 subjects, divide by 5, then we'll press enter. Again you will be getting the average marks. See, formula application over here is according to the Excel I have done. There are 2 methods you can calculate the average. Again over here I have calculated the average. Now I want the percentage. How can you get the percentage? So what is this? Over here I will select the column from where I have to create the percentage of the student. I have to find out the percentage of the student. I'll go to journal. After that more number format पे आपको जाना है, उसके बाद custom में जाना है. यहाँ से आपको 0 select करना है, double quotes में
डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर आपने परसेंटेज साइन सिलेक्ट करना है, फिर डबल कोट्स लगाने हैं, ओके करना है। फ्रॉम हेयर नाउ जो आपकी होल वैल्यू के बाद पॉइंट, फ्रैक्शनल वैल्यू से पहले आपका परसेंटेज आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्लस साइन के बाद ड्रॉप डाउन करना है, सो यू कैन सी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज। Now coming back over here, after percentage, let's say if there is a query, if teacher wants to know who is getting the minimum marks, so from here is the formula equals to min, put a bracket over here, select all the subjects from E3 to I3 is the ratio, press enter. So आपको यहाँ से मिल जाएगा मिनिमम मार्क्स। सी फूड प्रोडक्शन में 50 मार्क्स है स्टूडेंट के, फ्रंट ऑफिस में 56, मैनेजमेंट में 67, फूड एंड बेवरेज में 78, कंप्यूटर्स में 66। फ्रॉम हेयर what we'll do, I'll just drag it down over here. These are the minimum marks. So जब हम इन मार्क्स की बात कर रहे हैं रमन के, तो ही इज गेटिंग 50 मार्क्स इन दी फूड प्रोडक्शन सब्जेक्ट. Now coming back, if the teacher wants to know about the maximum marks of a student in out of all the 5 subject, in which subject that Aman or Raman student is getting the minimum marks, so here is the formula equals to max operation लगाएंगे, bracket लगाएंगे, you will select like this all the columns from E3 to I3, put the bracket, press enter. Like this we will be getting the minimum marks and maximum marks. These are the formulas. Now what is the count function? Count function basically आपको क्या बताता है कि आपके नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स वो काउंट करेगा जो क्या कंटेन करें, कोई वैल्यू कंटेन करें, कोई नंबर कंटेन करें. सो फ्रॉम ओवर हेयर इफ आई वांट टू फाइंड आउट द काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू COUNT, काउंट फंक्शन लगाया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, अपने सारे सेल्स तक ड्रैग कर लिया, एंटर दबाया. दिस इज़ हाउ, अगर हम देखें हम 15 स्टूडेंट्स की मार्कशीट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग दी. उसके बाद अगर हमें इसको टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म में देना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स में जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स. इस तरीके से आप अपनी एक मार्कशीट डिज़ाइन करेंगे. मिन, मैक्स, एवरेज, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, यू हैव गॉट इट. नाउ आफ्टर दैट इफ़ यू वांट दैट आपको रैंक निकालनी है बच्चे की, तो व्हाट शुड बी दी क्राइटेरिया. रैंक निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे फॉर्मूला. यहाँ पर रैंक आप निकाल रहे हैं बच्चे के मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, लेट्स सी ओवर हेयर. हम लोगों को पता है कि 15 बच्चे हैं, हमें रैंक निकालनी है टोटल मार्क्स के बेसिस पे. तो लेट्स सी हाउ वी आर पुटिंग ओवर हेयर, इक्वल टू ऑपरेटर, रैंक लगाओ, आप ब्रैकेट लगाओ. आफ्टर दैट आप इसके अंदर रैंक लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कौन से कॉलम से लगा रहे हैं, टोटल मार्क्स हमारे J3 कॉलम के अंदर है, J3. उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे J3 के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, डॉलर साइन, फिर आप लगाओगे J, फिर लगाओगे डॉलर साइन, फिर लगाओगे 3, फिर डबल कोट्स में लगाएंगे, सॉरी कोटेशंस में सेमीकोलन लगाएंगे, सॉरी. उसके बाद आप लगाएंगे डॉलर साइन J, देन आप लगाएंगे डॉलर साइन 17, कौन सी रो है हमारी 17, ये ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे. सो दिस इज़ हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द रैंक. देन प्लस साइन से हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे. अब अगर आपको देखना है इक्वल्स टू रैंक, आपने कहाँ से लिया, जो आपका टोटल फील्ड में वैल्यू है, यानी J3 की पोजीशन लगाई आपने, फिर आपका कंपैरिजन किससे होगा, जो J3 से लेके J17 तक, ये J3 है टिल J17 तक जितने हैं उनके अकॉर्डिंग आप रैंक निकालेंगे. नाउ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट पास एंड फेल, हाउ विल यू कैलकुलेट, आप लगाएंगे क्राइटेरिया. क्राइटेरिया आपको मैं यहाँ से बता रही हूँ, आई एम कॉपिंग इट फ्रॉम माई प्रीवियस एक्सेल विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ओवर हेयर आई विल बी शोइंग यू what is the criteria. If marks are greater than equals to 35 then pass, else fails. तो यहाँ पर हम if स्ट्रक्चर लगाएंगे, if लूप लगाएंगे. लाइक आपकी if लूप में क्या है, if इक्वल्स टू ऑपरेटर if, फिर ब्रैकेट एंड, फिर आप सबके वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है जी. मैं आपको यहाँ से करके दिखा रही हूँ. यहाँ पर आपने लगाया इक्वल्स टू इफ
ब्रैकेट लगाओ एंड देन ब्रैकेट लगाओ। अब हमने क्या चेक करना है, लॉजिकली चेक क्या करना है, अगर हमारी E3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 35 है, कॉमा, उसके बाद हमारे पास F3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, कॉमा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं G3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, कॉमा, फिर हम कर रहे हैं H3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, फिर हम क्या कर रहे हैं कॉमा लगा रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं I3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है। ये हो गया हमारा, कंडीशंस चेक हो गई हमारी। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, कॉमा, डबल कोट्स में हमने लिखा पास, ठीक है, कॉमा, नहीं तो एल स्टेटमेंट के लिए हम लिख रहे हैं फेल, और यहाँ हम ब्रैकेट बंद कर रहे हैं और एंटर। सॉरी, फेल के आपको भी डबल कोट्स क्लोज भी करने हैं, ठीक है जी, फिर हम प्रेस कर रहे हैं एंटर। ठीक है जी, इसका मतलब हमने थोड़ी सी कुछ मिस्टेक करी है तो भी हमारा ये एरर आ रहा है। ओवर हेयर इक्वल्स टू ऑपरेटर इफ़, यहाँ लगाएंगे एंड, फिर लगाएंगे ब्रैकेट में, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे E3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा, उसके बाद F3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा, उसके बाद आप करेंगे G3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा, उसके बाद आप करेंगे H3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा, उसके बाद आपके पास आया I3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, ये आपके पास आ गई। यहाँ हमने ब्रैकेट बंद किया। अगर ये सारी है तो हम डबल कोट्स में क्या दे रहे हैं, PASS पास दिया, कॉमा, फिर डबल कोट्स में हम दे रहे हैं फेल, इस तरीके से, और ये ब्रैकेट हमने किया बंद, ये आया पास। अब इसको हम प्लस साइन के बाद ड्रॉप डाउन करेंगे, जहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ फेल आ रहा है, इसका मतलब इस बच्चे के नंबर कम है। अगर हम इस चीज़ को, सारे सेल्स को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, हाईलाइट करेंगे, लेस देन लगाएंगे, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे जिस बच्चे के मार्क्स 35 से लेस हैं लाइट रेड कलर में फिल होके आ जाए, तो इस तरीके से हमारे को वो शो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगेन यू कैन सिलेक्ट दी सेल्स अकॉर्डिंगली। अब अगर हम चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन, अब जिस बच्चे के मार्क्स 65 से ग्रेटर है वो हमारा ग्रीन लाइट से, ग्रीन कलर की इंक से फिल्ड हो जाए, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ तक अभी हम एवरेज, परसेंटेज, मिन, मैक्स ये बता चुके हैं। अगेन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें ग्रेड निकालना है तो देयर इज़ वन क्राइटेरिया, अगेन यू हैड टू सिलेक्ट द क्राइटेरिया फ्रॉम हेयर। ग्रेड निकालने के लिए आपको पहले क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि आप किसके बेसिस पे आप अपनी मार्कशीट डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आपके मार्क्स की रेंज 91 से 100 के बीच में है तो A1 ग्रेड, 81 से 90 के बीच में A2 ग्रेड, 71 से 80 के बीच में है B1 ग्रेड, 61 से 70 के बीच में तो B2 ग्रेड, 51 से 60 के बीच में तो C1 ग्रेड, 41 से 50 के बीच में तो D ग्रेड, 33 से 40 के बीच में तो E ग्रेड है। यहाँ देखिए ग्रेड लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इफ़ इक्वल्स टू इफ़ ऑपरेटर, हम यहाँ पर अगेन नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, बच्चे के मार्क्स, मार्क्स का मतलब आपकी परसेंटेज के बेसिस पे, यानी L कॉलम। अगर आप L कॉलम के बेसिस में इफ़ L2 कॉलम के अंदर जो वैल्यू है, ये L2 पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन में रमन के नंबर पड़े हुए हैं। इफ़ L2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 91 तो आपका A ग्रेड बन रहा है। इफ़ L2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81 तो A2 ग्रेड, यानी आप इफ़ कंडीशंस लगा लगा के ब्रैकेट्स लगाएंगे। इफ़ L2 इज़ ग्रेटर देन 71 तो आपका क्या बन रहा है, B1 ग्रेड। इफ़ L2 इज़ ग्रेटर देन 61 तो B2। इफ़ L2 इज़ ग्रेटर देन 51 तो C1 ग्रेड। इफ़ L2 इज़ ग्रेटर देन 41 तो D ग्रेड, नहीं तो एल्स E ग्रेड। इस तरीके से आपने इफ़ स्ट्रक्चर लगाना है। ये एक इफ़ के अंदर आपने मल्टीपल इफ़ स्टार्ट्स करे हुए हैं, फिर आप कॉरस्पॉन्डिंगली जितने आपने ब्रैकेट्स ओपन किए उतने क्लोज करके एंटर दबाएंगे, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।